बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट दैट हु वर द मुगल्स, राइट. तो हमने देखा था मुगल्स कौन थे बच्चों. सो मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ two great lineages of rulers, right? So from their mother's side, they were the descendants of Genghis Khan, who was the ruler of Mongol tribe, and he also ruled over China and Central Asia, right? And from the father's side, they were the successors of Timur, who was the ruler of Iran, Iraq, and modern day Turkey, है ना. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा. We talked about who was the founder of Mughal dynasty. So it was Babur, who was the founder of Mughal dynasty, and it was after the Battle of Panipat that happened in 1526, and in that Babur defeated the Sultan of Delhi, who was Ibrahim Lodi, right? तो पानीपत में ये लड़ाई हुई थी बच्चों 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट करके he established his rule over Indian subcontinent and he founded the Mughal dynasty. तो सबसे पहले हम लोगों ने मिलिट्री कैंपेन्स देखे मुगल एम्पायर्स के. तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग ने बाबर का देखा, who was the founder of Mughal dynasty. We saw that he fought 3 battles, 1526 में, 1527 में and 1528 में, right? And after that he died in 1530 and he was succeeded by his son Humayun, who ruled from 1530 to 1540, and he was defeated in 1539 and 1540 by Sher Khan in 2 battles. I hope कि आप ये सारे battles पढ़ोगे. आपके लिए important है कि सारे battles का नाम आपको पता होना चाहिए, है ना. After that we saw that he again came back and he recaptured Delhi in 1555 और 1556 में finally हुमायूं की डेथ हो गई थी. आज की क्लास में अब हम लोग बच्चों आगे देखेंगे that who was the successor of हुमायूं. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट. नाउ लेट अस सी कि ये मिलिट्री कैंपेन फिर कैसे एक्सटेंड करता है एंड ऑल्सो हाउ these Mughal emperors they were extending their rule all over the Indian subcontinent. तो बच्चों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग ये मिलिट्री कैंपेन्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे बैटल्स भी दिख रहे होंगे और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि हम लोग इतने बैटल्स याद कैसे करेंगे. बट यहाँ पे कुछ बैटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से कि बाबर ने सबसे पहले तो दिल्ली और पानीपत को कैप्चर किया था, है ना. बट वो वहीं पे नहीं रुके. These were the successors of Mughal dynasty who then started expanding their empire all over the Indian subcontinent, and that is how it becomes important in history that we are reading about them in the medieval period, right? So now let us talk about Akbar. Akbar was 13 years old when he became emperor, और इसका टाइमलाइन देखो 1556 से 1605 तक. Now you can see that he has ruled for a long time, right? और सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसके अंडर होता है बच्चों, अकबर के अंडर ही होता है. So his reign can be divided into 3 periods. Here you can see this is the painting of Akbar, who was a great ruler in Mughal Empire, right? Now let us talk about the military campaigns of Akbar. और जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि अकबर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा. Why? क्योंकि आप लोगों ने या तो मूवी देखी होगी जोधा अकबर, नहीं तो सीरियल भी देखा होगा, है ना. एंड ऑल्सो अकबर इज रियली फेमस इन दिस होल मुगल डायनेस्टी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन अकबर के टाइम पे होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस अकबर के जितने पॉलिसीज थे बच्चों, सो दीज पॉलिसीज वर आल्सो फेमस एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय हिज सक्सेसर्स दैट इज जहांगीर एंड शाहजहां. Okay, now let us see the first reign of his military campaigns, that is from 1556 to 1570. So military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and Uzbeks. Okay, तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देखोगे कि मिलिट्री कैंपेन अकबर का कैसे शुरू हुआ. सो इट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट दी सूरीज, जो वहां पे शेरशाह सूरी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोगों ने नाम सुना होगा, हु वाज देयर द एम्पायर ऑफ बिहार, राइट. सो सूरी एंड अफगान जितने भी बाकी अफगान रूलर्स थे बच्चों, सो मिलिट्री कैंपेन सबसे पहले इनके अगेंस्ट लॉन्च हुआ टू सप्रेस देम सो दैट दे कैन एक्सपैंड देयर एम्पायर. ऑल्सो इट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट दी नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड ऑल्सो अगेंस्ट दी his half brother that is Mirza Hakim. Okay, तो यहाँ पे जैसे आप इस मैप में देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपको जो येलो कलर दिख रहा है जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, now these are the regions that was captured by Akbar in his reign. Okay, ये पूरा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दिल्ली और आगरा, दिस वाज द रीजन, राइट, जो सबसे पहले किसके अंडर था, सो इट वाज अंडर बाबर. लेकिन अब आप देखो कि सिर्फ दिल्ली और आगरा में ही नहीं, ये पूरा आपका राजस्थान जो प्रेजेंट डे राजस्थान रीजन है, गुजरात रीजन है, हाफ ऑफ महाराष्ट्र
and also Bengal, the whole region was now under Akbar. Okay. Also in 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569 Ranthambore. Okay. तो बच्चों ये चित्तौड़ और रणथंभौर कहाँ पे? So these are the region in Rajasthan. Okay. तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या समझना है कि आप देखो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट है एंड द नॉर्दर्न पार्ट इट वाज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ अकबर ड्यूरिंग हिज रूल. सो ये पहला आप जो पढ़ रहे हो पहला पार्ट जो हमारा 1556 से 1570 जो है, तो यहाँ पे मेनली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है बच्चों जिसको अकबर ने कैप्चर किया था. ओके. अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज फ्रॉम 1570 to 1585. So military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Odisha. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा अबाउट द अकबर्स मिलिट्री कैंपेन, सो दैट वाज मेनली नियर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज प्रेजेंट राजस्थान. और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है हमारा, द सेकेंड पीरियड ऑफ हिज मिलिट्री कैंपेन, यू कैन सी दैट इट वाज बेसिकली इन गुजरात, देन द रीजन ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा इन हियर. ओके. तो बेसिकली ये सारे रीजन थे बच्चों, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दैट वाज अगेन कैप्चर्ड बाय अकबर इन हिज सेकंड पार्ट. आल्सो दीस कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579-1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम. तो बच्चों जो अकबर के हाफ ब्रदर थे दैट इज मिर्जा हाकिम, तो ही वाज आल्सो रिवोल्टिंग अगेंस्ट अकबर बिकॉज ही वांटेड टू रूल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो बेसिकली इन दोनों के बीच हमेशा कॉन्क्वेस्ट हुआ करता था. सो ये जितने भी कैंपेन्स थे दीज वर बीइंग कॉम्प्लिकेटेड बाय Mirza Hakim's revolt in 1579 and 1580. Okay. Now this is the second part of Akbar's military conquest here. Okay. तो आपको बेसिकली ये सारे रीजन्स याद करने पड़ेंगे, आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा मैप देखकर कि कौन कौन से रीजन्स थे जहां पे अकबर ने अपना मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था एंड ही कैप्चर्ड दोज एरियाज. राइट. अब बच्चों हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज योर 1585 to 1605. So expansion of Akbar's empire, campaigns in northwest. Okay. Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir was annexed, as also Kabul after the death of Mirza Hakim. So finally अब आप देखो when we are talking about the expansion of Akbar's empire in 1585, तो वहां पे आप देखो that his campaign was in the northwest region. तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे राजस्थान के रीजन में तो देखा that he had captured almost this region, Ranthambore या जो भी रीजन यहाँ पे था. राइट. उसके बाद इन्होंने क्या कैप्चर किया? कांधार. यहाँ पर आप देखो जो अभी आपको प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में मिलेगा. ओके. सो इट वाज सीज्ड फ्रॉम सफाविड्स. आल्सो कश्मीर वाज एनेक्स्ड. यहाँ पे आप कश्मीर देख सकते हो, कश्मीर वाज एनेक्स्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड आल्सो काबुल वाज एनेक्स्ड इन दिस पीरियड. अगेन यू कैन सी इन अफगानिस्तान. राइट. एंड इट वाज एनेक्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम. तो यहाँ पे देखो जैसे पहले क्या हो रहा था कि ही वाज facing the revolts from Mirza Hakim who was his half brother. लेकिन here you can see that it was after 1585 that Mirza Hakim died and therefore he was able to annex all these areas of Kandahar, Kashmir, Kabul and the areas lying in the northwestern part of our Indian subcontinent. Also campaigns in the Deccan started and Virar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. तो बच्चों अब फाइनली नॉर्दर्न पार्ट में तो इन्होंने कैप्चर कर लिया था. Now he started capturing the region of Deccan. अब डेक्कन में कौन कौन सा रीजन था बच्चों? सो इट वाज खानदेश, बिरार एंड अहमदनगर. तो ये छोटे बहुत रीजन थे जो आपको यहाँ पर मिलेंगे. ओके. तो इस रीजन में इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कैप्चर करना शुरू किया, बट ओनली सम ऑफ द रीजन्स वर कैप्चर्ड बाय अकबर. एंड वी सी दैट अकबर का रूल कब तक है? इट इज टिल 1605. आफ्टर दैट अकबर डाइड एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन दैट इज जहांगीर. तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि अकबर का मिलिट्री कैंपेन 3 फेज में होता है. राइट. अब आपको ये तीनों फेज एक बार पढ़ना पड़ेगा. आप मैप देख के समझना कि कौन से फेज में कौन सा रीजन कैप्चर किया गया था. एंड जस्ट रिमेंबर कि ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड द नॉर्दर्न पार्ट, देन अगेन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ऑल दीज रीजन्स वर बीइंग कैप्चर्ड बाय अकबर ड्यूरिंग हिज reign here in the Indian subcontinent. Okay. Now let us talk about Jahangir, who was the successor of Akbar. अब सबसे पहले हम लोगों ने, अगर हम लोग मुगल एम्परर्स की बात कर रहे हैं, सो प्लीज रिमेंबर सबसे पहले हम लोगों ने बात किया बाबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. देन वी टॉक्ड अबाउट हुमायूं, हु वाज द सक्सेसर ऑफ बाबर. तो ये पूरा आपको लीनिएज याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन आए, उसके बाद उनके सक्सेसर कौन थे, उसके बाद उनके सक्सेसर कौन थे. राइट. तो मैं ऐसे रिपीट करते जाऊंगी सो दैट आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा. तो सबसे पहले आप याद रखना बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर. तो जहांगीर का टाइमलाइन देखो बच्चों, यहाँ पे इट इज फ्रॉम 1605 टू 1627.
Okay, now let us see the military campaigns under the reign of Jahangir. So military campaigns started by Akbar continued. तो बेसिकली आपने देखा कि अकबर ने 1605 तक ऑलमोस्ट डेक्कन के कुछ पार्ट्स को कैप्चर किया था, राइट? सो देयरफॉर इट वाज कंटिन्यूड बाय जहांगीर. आल्सो द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस. तो आप लोग, अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे वी विल सी दैट मुगल्स हैड देयर स्पेशल रिलेशन विद राजपूत्स. लेकिन ये कुछ राजपूत रूलर्स ऐसे थे बच्चों दैट हु वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द मुगल रूल, राइट? तो वो लोग हमेशा कैंपेन करते थे, वो लोग हमेशा कॉन्क्वेस्ट करते थे. दे यूज्ड टू फाइट विद द मुगल्स. बट एंड वन ऑफ द एग्जांपल यू विल सी अबाउट द सिसोदिया रूलर्स. लेकिन ये यही फेज होता है आफ्टर 1605 दैट द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ हु वाज अमर सिंह ही एक्सेप्टेड द मुगल सर्विस. अब यहाँ पे आप देखो राजस्थान में आपको ये मेवाड़ रीजन मिलेगा, राइट? अब आप देख रहे हो ये पूरा रीजन, आप अहमदनगर के बारे में जैसे हमने देखा था. सो सम ऑफ द रीजन वर ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय अकबर, लेकिन जहांगीर आल्सो ही कंटिन्यूड द कॉन्क्वेस्ट दैट वाज कैरिड आउट बाय अकबर. तो ये पूरा रीजन आपको जो कलर दिख रहा है यू कैन सी दैट इज द होल रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर दैट वाज एनेक्स्ड बाय मुगल एम्पायर. तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिख रहा है, राइट? दैट वाज अंडर द मुगल रूल, है ना? लेकिन जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड देयर एम्पायर टिल हियर इन द southern India, right? Also less successful campaigns against the Sikhs, the Ahoms and Ahmednagar followed. अगर हम लोग जहांगीर की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कैंपेन्स नहीं हुए थे बच्चों. There were less successful campaigns like that of against the Sikhs, then the Ahoms and Ahmednagar. तो बच्चों सिक्स कहाँ पे आपको मिलेंगे? तो आप प्रेजेंट डे जो पंजाब है वहां पे जो सिक्स रहते थे उनके अगेंस्ट भी कैंपेन हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे असम का रीजन वहां पे अहोम्स रहते थे, ओके? तो अहोम्स के अगेंस्ट भी कैंपेन्स हुआ था. एंड ऑल्सो अहमदनगर दैट इज इन डेक्कन पार्ट, वहां पे भी आप देखोगे दैट देयर वर सम लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स दैट वाज कैरिड आउट बाय जहांगीर. So please remember the timeline and also which were the places that were annexed under Jahangir here. अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अबाउट दी सक्सेसर ऑफ जहांगीर हु वाज शाहजहां. अब हम देखेंगे शाहजहां के रीजन में कौन कौन सा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुआ था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट शाहजहां का टाइमलाइन पीरियड क्या है. सो इट इज फ्रॉम 1627 टू 1658. ओके, नाउ रिमेंबर कि सबसे पहले बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट शाहजहां हियर. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द मिलिट्री कैंपेन अंडर द शाहजहां's reign. ओके, सो मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां. तो जैसे अभी हम लोगों ने कवर किया कि डेक्कन में कुछ लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स हुए थे, अहमदनगर फॉर एग्जांपल. तो शाहजहां ने भी ये पूरा कैंपेन कैरिड आउट किया दैट वाज लेफ्ट बाय हिज फादर जहांगीर. ओके, नाउ कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड. तो बच्चों आप देखोगे बुंदेलास जो इस टाइम साउथ में थे यहाँ पे, ओके, इस रीजन में, तो यू विल सी दैट बुंदेलास को भी कैप्चर किया गया था. दे वर आल्सो डिफीटेड एंड आल्सो ओरछा दैट इज इन मध्य प्रदेश, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, इट वाज आल्सो सीज्ड. ओके, इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बाल्ख फ्रॉम द उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वाज लॉस्ट टू सफाविड्स. तो आप याद करो कि जब अकबर के बारे में बता रही थी तो ही हैड कैप्चर्ड द कांधार रीजन दैट वाज इन अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, राइट? बट यहाँ पर आप देखो अगेन सफाविड्स ने फिर से उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया एंड दे कैप्चर्ड कांधार एंड इट वाज अंडर द सफाविड्स अगेन. ओके, इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड बीजापुर फोर्सेस सूड फॉर पीस. तो बच्चों फाइनली आप देखो बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट आपको दिख रहे हैं कि पहले अहमदनगर को इन्होंने कैप्चर किया, फिर इनको अहमदनगर पूरा नहीं मिला. तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि ऑब्वियसली पीपल और द रूलर्स, द लोकल रूलर्स लिविंग इन दीज रीजन्स, दे वर रिबेलिंग बैक टू दी मुगल एम्परर्स, राइट? तो आप देखो कि डिफरेंट रीजन्स में ये कॉन्क्वेस्ट तो कर रहे थे, बट हाँ कुछ लोग थे, कुछ रूलर्स ऐसे थे जो इनको रेबेल कर रहे थे. देयरफॉर बहुत ही मुश्किल हो रहा था इनके लिए वापस से उस एरिया को कैप्चर करना. बट समहाउ दे वर एबल टू फाइनली कैप्चर अहमदनगर एंड आल्सो बीजापुर फोर्सेस, दे आल्सो सूड फॉर पीस. यहाँ पे आप देखो इस रीजन में आपको बीजापुर दिखेगा, है ना, सदर्न रीजन में. तो फाइनली इन्होंने पूरा डेक्कन में भी अपना कंट्रोल दिखा दिया था. इन शाहजहां रीन यू कैन सी दैट the empire also extended to southern region of our Indian subcontinent, right? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया? We basically talked about the Mughal military campaigns under Akbar, then Jahangir and Shahjahan. तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि बाबर ने सबसे पहले कैप्चर किया था दिल्ली और आगरा को, और कैसे वो दिल्ली और आगरा से धीरे धीरे आप देखो हुमायूं के टाइम से बहुत सारे बैटल्स वर फॉट एंड आल्सो इट वाज इन द टाइम ऑफ अकबर दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज कैप्चर्ड, राइट?
हम लोग ने देखा अकबर के टाइम पे 3 फेज में पूरा ये मिलिट्री कैंपेन हुआ था. सो प्लीज रिमेंबर ऑल द 3 फेजेस जिसके बारे में हमने बात किया. आफ्टर दैट he was succeeded by his son, that is Jahangir. He also continued the conquest of Akbar. डेक्कन में उन्होंने बहुत सारे रीजन्स को कैप्चर किया था. Some of the campaigns were less successful. That was followed by Shahjahan, who was the son of Jahangir. Okay? अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग औरंगजेब के बारे में बात करने वाले हैं. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.